Hello dear students, welcome to the class today. So children, as you know, I had already told you that we have completed the chapter New Kings and Kingdoms. Today we have to discuss the question and answers. First we will be discussing the question and answers. Then we will be starting with a new chapter. So children, here we start with the discussion of question and answers, New Kings and Kingdoms. So the question goes like this. Match the following is the first question where we find first is Gurjara Pratihara. Gurjara Pratihara कहाँ पे मिलते थे? Where do we find this category? Gurjara Pratiharas were always found in Gujarat and Rajasthan. Second, we have the Rashtrakutas. Rashtrakutas were found in the Western Deccan. Just see, the answer is very clearly mentioned here. They were found in the Western Deccan. Then we have the Palas. Palas is very clear, most simple one. Palas were the one category which were found in the Bengal region. Then we have the Cholas. Cholas, of course, so much of discussions we had on Cholas, and Cholas we find in Tamil Nadu. Okay, children. Now, who were the parties involved in the tripartite struggle? एक जहाँ पे where it was being discussed 2-3 times in the video, I told you that tripartite struggle was the struggle. It is already the word tri is mentioned there. Tri means three. So tripartite struggle, it is the between the three rulers, the Gurjara Pratihara, the Rashtrakutas and the Palas. ठीक है, तीन किंगडम्स, थ्री किंगडम्स हमेशा किस जगह के लिए लड़ते थे? कन्नौज के लिए. They always used to fight for Kannauj, one of the very happening places during the medieval times. तो उसके लिए हमेशा राजा महाराजा आपस में झगड़ा करते रहते थे कि कन्नौज के ऊपर कब्जा करना है. इसके लिए थ्री किंगडम्स वेयर कंटिन्यूसली फाइटिंग. Let's see the next question, dear students. What were the qualifications necessary in become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire? Last topic यही था children, where we understood कि committee member बनने के लिए क्या क्या qualities होनी चाहिए. So children, it was very clearly mentioned here. देख लो इसको अच्छे से. सबसे पहला तो हो गया कि members should be owner of land. लैंड थोड़ी होनी चाहिए ना, आप इतना इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हो, अगर ज़मीन भी नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे? सो दे शुड पोसेस, दे शुड बी ओनर्स ऑफ सम लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड. उस लैंड का इनको मालिक होना चाहिए जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है. इसके बाद दे शुड हैव देयर ओन होम्स, ऑफ कोर्स अपना घर होना चाहिए. This all was there in that box जहाँ पे we were talking about the inscriptions, isn't it? Then what should be the age? I was very impressed कि एक 70-year age के old man को भी पावर में आने का पूरा हक बनता है. So the age gap should be between 35 to 70 years of age. They should have knowledge of the Vedas. इनको होनी चाहिए, and they should be well versed in administrative matters and honest. एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एंड ऑनेस्ट नहीं है, चोर बाजारी कर रहे हैं, तब तो इस सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है. देन पहले लास्ट 3 years में द कमिटी मेंबर, जिस कमिटी के वो मेंबर हैं, further also they should be the members of that committee only. They should not change the committee. This is a good criteria actually. And they should submit his accounts as well as relative. आपके पास कितना पैसा है, relatives के पास कितना पैसा है, for contesting the elections. Elections अगर contest करना है तो ये सारी डिटेलिंग देने की ज़रूरत है. ओके. What were the two major cities under the control of Chamhanas? Chamhanas के अंडर में कौन कौन से cities कंट्रोल थे? I had asked you this question. Remember, मैप देखते टाइम में मैंने आपसे पूछा था which cities were there. So children, here it is Delhi and Ajmer. Okay. Next question देखो, how did the Rashtrakutas become powerful? Rashtrakuta
जब भी बात करते हैं देन वी हैव टू टॉक अबाउट द राष्ट्रकूटा चीफ दांती दुर्ग। 8th सेंचुरी में द चीफ ऑफ राष्ट्रकूटा दांती दुर्ग, चालुक्य ओवरलॉर्ड को इन्होंने ओवरथ्रो किया एंड परफॉर्म्ड अ स्मॉल रिचुअल, एक छोटा सा सेरेमनी किया विच वॉज कॉल्ड एज हिरण्यगर्भ, कि ही इज बॉर्न फ्रॉम द गोल्डन वूम्ब ऑफ द मदर। ठीक है, गोल्डन वूम से ये पैदा हुए हैं। एंड दो ही वॉज नॉट, देखो ही डिक्लेयर्ड द हिमसेल्फ एज क्षत्रिय, जबकि ही वॉज नॉट अ क्षत्रिय बाय बर्थ। ओके, इसके बाद व्हेन दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ, जब इनको सारा पावर मिला, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। अपने किंग से इन्होंने अपने आप को अलग से पावरफुल बताया। दे फॉट, बहुत इन्होंने लड़ाई की विद गुर्जरा प्रतिहारा एंड पाला डायनास्टीज। पाला डायनास्टीज एंड गुर्जरा प्रतिहारास के साथ इनकी काफ़ी लड़ाई हुआ फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज एंड दिस इज हाउ ही रोज टू पावर। इस तरह से क्या हुआ ना, दांती दुर्गा बिकेम वेरी न्यू डायनास्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। सारे लोग नए रूलर्स को एक्सेप्ट कर लें, नए रूलर्स के साथ प्रेम से रहें, उनको बहुत इज्जत दें, उसके लिए वो क्या करते थे, जस्ट सी ये क्या करते थे, द न्यू डायनास्टीज specific region was there and existing kings were the subordinates or the samantas। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो दे declared themselves महासमंता या महामंडलेश्वर एंड अपने लॉर्ड से इन्होंने अपने आप को फ्री कह दिया। दे सेड कि दे आर फ्री फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। ओके, रिचुअल्स ये परफॉर्म करते थे टू डिक्लेयर देमसेल्व्स, ऐसा रिचुअल करते थे जिसमें कि दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज क्षत्रिय एंड दे फॉट वॉर, काफ़ी सारे वॉर्स फाइट किए इन्होंने विद द नेबरिंग रीजन्स, आसपास के एरियाज में। दे गेन्ड पावर एंड ऑल्सो बिल्ड टेम्पल टू एक्नॉलेज इट। बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए। टेम्पल्स बना देने से ही लोग क्या होता था, बहुत इम्प्रेस हो जाते थे। देखो, रिलीजन इज़ अ वेरी थिन स्ट्रिंग। अगर रिलीजियसली आपने किसी को हैप्पी कर दिया तो द पीपल विल डेफिनेटली सपोर्ट यू इन ऑल द मैनर्स। सो किस तरह का इरिगेशन वर्क यहाँ पे डेवलप हुआ था, जैसी काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क, वाटर फ्रॉम द कावेरी रिवर प्रोवाइडेड, सबसे ज़्यादा कावेरी रिवर से ही वाटर मिलता था एंड द लैंड वॉज वेरी मॉइस्ट एंड वेरी फर्टाइल फॉर इरिगेशन। पहला तो आपको ये बता देना है। इसके बाद सम एरियाज वेयर डग इन सम प्लेसेस, बिग टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, एम्बैंकमेंट्स वेयर बिल्ट। एम्बैंकमेंट्स मीन्स जो पानी शहर के अंदर आ जाता था उसके लिए बड़े बड़े घाट बना दिए। एंड कनाल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर, वाटर पानी पूरा फील्ड तक लेके जाना है। उसके बाद कभी कभी पानी शहर के अंदर भी घुस जाता था, उसके लिए स्लूस गेट्स वेयर बिल्ट। स्लूस गेट्स ऐसे पत्थर के स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते थे जिससे कि पानी का बहाव रुक जाए। वाटर विच इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट, द फास्ट फ्लोइंग वाटर इज स्टॉप्ड टू ओवरफ्लो द टैंक इनटू द चैनल्स। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि उन चैनल्स की वजह से। चोला टेम्पल्स में क्या क्या काम होता था, चिल्ड्रन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। बहुत सारा, यू नो, चोला टेम्पल वॉज अ कंप्लीट सेंटर ऑफ एक्टिविटी। Lot of activities were being carried on, तो temples were centers of craft production and खाली worship के लिए ही लोग यहाँ नहीं जाते थे, but also where the economic, social and cultural activities were also taking place. There were priests, garland makers, cook, sweepers, musicians, dancers. They lived near the temple and many activities they performed in the temple. एंड टेम्पल्स क्या था, टेम्पल्स में और भी काम होते थे। दे वेर एसोसिएटेड विथ मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज। रिमेंबर दैट लेडी का ब्रॉन्ज इमेज, माई गॉड, इट वॉज जस्ट वाओ एंड सो ब्यूटिफुल ब्रॉन्ज इमेज दैट वॉज मेड, विच वॉज कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में इस तरह का इमेज देखने को नहीं मिलेगा, the kind of bronze images that were constructed in these temples. तो आप ये समझ लो, temples in Chola Empire was the hub of all the economic activities.
This is what I wanted to discuss, children. So here we come to the end of the chapter. Let's start the new chapter. So let's see which chapter are we going to start. Okay, children. Thank you so much. Come, let's begin the new chapter now. So dear students, just now we discussed the question and answers. Chapter 2, History. Now, when we have discussed the question and answers, let's start with the new chapter. As I had already told you that we are going to start the new chapter. This is the new chapter that we are starting, Geography, Chapter 2, Inside Our Earth. Yes, this earth is there. What is the material inside this earth? The earth, as you know, अभी तक हमने क्या पढ़ा? We have understood in the first chapter the components of the environment. In our environment, so many things we find. ठीक है, अपने पर्यावरण में हमको इतनी सारी चीजें मिलती हैं. We are getting so many things in the environment. Now, what we need to understand is, ये जो अर्थ है, this earth, what is there inside the earth? अर्थ में, our homeland में, it is a dynamic planet. Dynamic means बहुत changes हो रहे हैं. Earth is a dynamic planet. As I have already told, dynamic, where changes are happening on a very large scale. And अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, बाहर भी चेंजेस हो रहे हैं, इनसाइड, आउटसाइड, ऑल द चेंजेस दैट आर अकरिंग. कभी सोचा है व्हाट लाइज इनसाइड द अर्थ? बाहर तो नजर आ रहा है, वी कैन सी एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द अर्थ, बट एक्चुअली व्हाट इज देयर इनसाइड एंड व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? किस चीज की ये सारी चीजें बनी हैं? What is there? What are the various matters? What are the various chemicals and the other things with which the earth is made? तो सबसे पहले एक हल्का सा हम यहाँ पे dear students will draw a diagram. ठीक है, डायग्राम से हम समझेंगे. सपोज इट इज अ केक कह लो उसको, या पिज्जा कह लो. इसका वन पार्ट को हम कट करेंगे. वी विल बी कटिंग वन पार्ट. ओके, सबसे ऊपर वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट. गॉट इट? ये क्रस्ट हो गया. क्रस्ट के ठीक नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसके ठीक नीचे, जस्ट बिलो दिस इज लिथोस्फेयर. क्या है? हियर वी हैव लिथोस्फेयर. ओके, और नीचे जाना है? चलो ठीक है, लेट्स गो मोर डीप. और नीचे जाते हैं, और नीचे जब जाएंगे तो हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मैंटल. ये इतना थिक पार्ट है विच इज मैंटल. मैंटल, और नीचे जाना है? चलो लेट्स गो मोर. और नीचे जब जाएंगे तो दिस इज द कोर. ठीक है, कोर और मैंटल की ये जो है, दिस इज द आउटर कोर. कोर का ये बाहर का पार्ट है. कोर और मैंटल की आउटर कोर इज कोर, मैंटल, बाउंड्री. बाउंड्री ही बहुत लंबी है, इट्स वेरी थिक बाउंड्री. ओके, उसके बाद और नीचे जाएंगे तो हियर वी हैव द आउटर कोर. और ये क्या है? सबसे बीच में, सबसे नीचे पहुंच गए हम लोग, तो दिस इज द इनर कोर. गॉट इट? अर्थ का स्ट्रक्चर बाहर बाहर दिख रहा है, अंदर अंदर नहीं दिख रहा है. इट इज जस्ट लाइक एन अनियन. प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ स्टेटमेंट्स है विच इज वेरी फनी. इट इज जस्ट लाइक एन अनियन. प्याज की तरह है. जैसे प्याज की परतें होती हैं, प्याज तो देखा, एवरीबडी हैज सीन, डिफरेंट लेयर्स आर देयर. In the same way, here also we find different layers of the earth.
इट इज मेड ऑफ बहुत सारे लेयर्स हैं विथ वन इनसाइड द अनदर, एक के अंदर एक के अंदर एक, बहुत सारे लेयर्स हैं. Different layers are there, one under another. एक के अंदर दूसरा लेयर है, और ये लेयरिंग जो है इसी से अर्थ का पूरा सिस्टम फंक्शन होता है. द होल function of the earth is being carried on through these layers. So we need to understand these layers. इन layers के बारे में समझना बहुत जरूरी है. Uppermost layer over the earth's surface is called the crust. Uppermost layer of earth's surface is crust. ठीक है, अर्थ का डायग्राम बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं. हियर इज द क्रस्ट. सबसे ऊपर का एरिया है जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे सारी एग्रीकल्चर होता है. ऑल द अर्थ प्रोसेसेस इज हैपनिंग ऑन द क्रस्ट. सारा काम काज जो है अर्थ का कहाँ पे हो रहा है? इट इज ऑल हैपनिंग ऑन क्रस्ट. सो थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतला लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं. वी स्टे, there is environment, there is forest, there is animals, plants, everything is there on the crust. So the most important layer of earth, of course we have to understand, it is the crust. Thinnest of all the layers, it is 35 kilometer on the mass. Thinnest of all, it is 35 kilometer on the continental mass. ये जो हमारा अर्थ है ना, इसके ऊपर का ये जो क्रस्ट है ना, दिस थिक है. मतलब प्लीज गो डाउन टूवर्ड्स, डाउन में 35 किलोमीटर. 35 किलोमीटर स्ट्रेट नहीं, नॉट स्ट्रेट. It is when you go deep 35 किलोमीटर. So 1 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहां तक क्या मिलेगा? It is all crust, depth in depth. ठीक है. And only 5 किलोमीटर on the ocean floor. ओशन के ऊपर तो क्रस्ट बहुत कम है ना, मट्टी उट्टी तो ज्यादा है नहीं. So only 5 kilometer on ocean floor. पानी है, पानी में तो नीचे हम 5 किलोमीटर तक ही जाएंगे, वहां तक आपको पानी ही मिलेगा. उसके नीचे, बहुत नीचे जा भी नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट गो इनटू द वेरी डेप्थ ऑफ द अर्थ. तो शुरू का जो सबसे, जहां पे हम रहते हैं, जहां प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, and all the living organism are staying on this crust. I hope it is clear. 35 kilometers तक. Okay. इसके बाद और नीचे जब जाएंगे, the main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina. अब इसको कैसे समझेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड कि ये क्रस्ट किन चीजों से बना हुआ है. With what is this crust made of? Got it? Crust is made up of what? That we need to understand. So when we understand it in detail, so it is the mineral constituent of the continental mass are silica and alumina.
ये जो क्रस्ट है, दिस क्रस्ट, क्या मिनरल्स मिलते हैं इसमें? What are the mineral contents on this crust? So it is silica and alumina जिससे का ये क्रस्ट बना हुआ है। तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, इसका फर्स्ट 2 लेटर्स, इसका 2 लेटर्स। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज Cl। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज Cl, सिलिका एंड एल्यूमिना, इसका फर्स्ट लेटर लेके। ओशनिक क्रस्ट, जो ओशन है, समुद्र है, मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अर्थ के ऊपर ये जितना भी क्रस्ट है जहां हम लोग रहते हैं, द प्लेस वेयर वी लिव, दैट इज Cl, एंड द ओशनिक क्रस्ट, द ओशनिक क्रस्ट mainly consist of silica and magnesium। ठीक है, यहां पे क्या था? SiAl, सिलिका एंड एल्यूमिना का फर्स्ट लेटर्स हमने लिया था, यहां भी हम सिलिका एंड मैग्नीशियम का फर्स्ट लेटर्स लेंगे। सो इट विल बिकम सीमा। क्या बनेगा? सीमा, SIMA। गॉट इट? सो इट इज ओशन क्रस्ट जो है, मेनली इसमें वी फाइंड सिलिका एंड मैग्नीशियम, दैट इज सीमा, एंड दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में हमको पता चला है। ठीक है, सो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। जो अर्थ है जहां पे हम रहते हैं, दैट इज Cl, सिलिका एंड एल्यूमिना, एंड देन सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। गॉट इट चिल्ड्रन? दैट इज देयर। अब क्रस्ट इज देयर, when crust is there, then please try to understand। crust से अब हमको नीचे जाना है, we have to go further। the crust, just beneath the crust, crust के ठीक नीचे क्या है? we have the mantle, below the crust is the mantle। क्या है यहाँ पे? इट इज द मैंटल। मैंटल पता है कितने दूर तक है? कैन यू बिलीव हाउ फार इज द मैंटल? मैंटल इज 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट इज द मैंटल। ओके, नाउ ये 2900 किलोमीटर, ये देखो, दैट्स व्हाई सच अ बिग एक्सटेंट इज गिवन हियर। इतना लंबा यहाँ पे स्ट्रेच दिया हुआ है। एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ इज द कोर विथ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। गॉट इट? जब हम और नीचे जाएंगे तो फिर वी विल बी फाइंडिंग द innermost layer is the mantle हो गया, आई एम सॉरी, innermost layer is the core। अब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? we are talking about core। ये जो एरिया है, अभी यहां तक नहीं पहुंचे, we have not reached till here। ठीक है, it has radius of 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर तक इसका रेडियस है, एंड दैट इज हाउ द कोर इज फाउंड। मेजरली कोर क्या चीज का बना हुआ है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, एंड इट इज कॉल्ड एज नाइफ। कोर में क्या मिलता है? It is made up of nickel and iron।
Iron is also called as ferrous. So and I का हो गया nickel and Fe हो गया ferrous. Iron का another name is, synonym for iron is ferrous. Got it? तो ये हो गया, this core sector is called as knife. छोटा छोटा नाम दिया गया है इनका. Lot of and central core has very, अब यहाँ पे सारा भार अर्थ का कोर के ऊपर है. The whole the whole of the crust and lithosphere, everything is resting on core. सारे का सारा जो है वो कोर के ऊपर डिपेंडेंट है. That's why core has very high temperature and pressure. Please understand. Core has very high temperature and pressure. Obviously पूरी की पूरी धरती का बोझ जो है वो कोर पे है ना, मिडिल पे ही तो सारा बोझ रहता है. पूरी धरती को उठाया हुआ है कोर ने. That's why core has got very high temperature and pressure. This was all about the earth. इतना तो हम अर्थ से समझ गए हैं. अब what we need to understand, this is what was about the earth. The diagram is given there in your book. My dear students, you have to make that diagram. अर्थ का जो डायग्राम है, the beautiful diagram that is made in your book, you have to make it in your notebooks. Please make it in your notebooks. Okay? इस समय इसमें जो है, another thing that is important is rocks and minerals. किस तरह के, अब जो चीजें हमको अर्थ पे नजर आ रही हैं, ठीक है, आप बहुत सारे पत्थर देखते हैं. You see so many of the rocks that are found on the earth, and then you have, yes, other things that you find is minerals. Minerals हमको नजर नहीं आते हैं. जो चीज हमको नजर आती है, that is the rock. And rock के the rocks are constituted of minerals. Rocks किस चीज से बने हैं? Rocks जो है वो mineral से बने हैं. Earth crust is made up of various types of rocks. यही चीज समझना है, that earth crust is made of different types of rock. बहुत तरीके के रॉक को मिला के अर्थ हैज बीन मेड. जो अर्थ का आप क्रस्ट देख रहे हो, एंड द रॉक्स दैट आर देयर, इट इज देयर एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर. कुछ भी नेचर में, वॉट एवर इज मेड अप ऑफ मिनरल that makes up the earth crust is called a rock. Any natural mass, rock का explanation is important. Any natural mass of mineral matter is found on Earth's crust is called a rock. इस सबको मिला के हम क्या कहते हैं? इसको हम रॉक कहते हैं. क्रस्ट है ना, जो अपर मोस्ट लेयर है, जितने भी पत्थर हैं उन सारे पत्थरों को मिला के रॉक बना हुआ है. एंड रॉक कैन बी डिफरेंट ऑफ कलर, रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. Rock can be of different color, size and texture. बहुत तरीके के रॉक हैं. There is igneous rock, there is sedimentary rock, there is metamorphic rock. These rocks are very important. पता है, अगर रॉक नहीं होना, ह्यूमन लाइफ वुड बी वेरी टफ.
Yes, children, I am saying this because rocks constitute the most important part in our life. All the minerals that are extracted, जितना भी earth crust बना हुआ है, it is made out of rocks. If rocks are not there, तो earth crust भी नजर नहीं आएगा. Earth crust won't be visible. Got it? तो आप इसी से रॉक्स की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हो. Got it, children? So this is what, but the different kinds of rocks with which the earth is made, this we will be discussing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.